Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this week's class of digital communication. I am your course instructor Dr. Naveed Mufti at the Department of Telecommunication Engineering, University of Engineering and Technology, Mardan. So last week we looked at the first few steps of the source encoding block. So basically we looked at quantization, its definition, different effects that quantization brings in, and the relationship and the visualization of quantization levels and step size, and how that is related to the quantization SNR. And after having discussed different examples of quantization with different levels and their comparison, we proceeded on to encoding, whereby a certain bit combination is assigned to every quantized sample. So we looked at a couple of examples where it showed how encoding is done. And then, having developed that concept of quantization and encoding, we then elaborated upon quantization noise or quantization error, how to determine that of a whole quantizer, and how we can then, based on the overall quantization error, we can compare quantizers. And I also gave you an example to practice of two different quantizers dealing with the same signal. Then we moved on to look at non-uniform quantization and where it becomes necessary, what are its applications and its advantages, and then how to achieve it by the use of compending. So what is the concept of compending? And then we looked at the two most popular compending standards, that is mu law and A law. So these are the things we discussed last week. So the topics we will be looking at this week is differential pulse code modulation, and what is linear prediction. DPCM is basically using linear prediction as the most popular prediction algorithm. And then simplified type of DPCM is delta modulation. And then another variant of DPCM which is more smarter but more complex is adaptive differential pulse code modulation. So these four are basically variants of PCM. And then we will discuss the concept of compression, and then look at practical examples of how compression is applied in telephony, in audio files compression, how is it applied in image compression, and how in video compression. And then we discuss the concept of information and how information is related to probability, and how the value of average information is basically the value of entropy, and how entropy establishes the limit on the compression we can achieve in a lossless manner. So these are the learning outcomes for this lecture. At the end of this lecture, you should be able to understand the working principle, the concept and differences between PCM and its variants. We should be able to recognize what compression is and its applications, how they are implementing compression, and then understand the basics of information theory and entropy. And finally, should be able to relate entropy to lossless compression, which is what was proposed by Shannon. Okay, so let us start with discussing DPCM, which stands for differential pulse code modulation. So it is a variant of pulse code modulation. So what is the background? Firstly, let us remember that if we sample at a rate higher than Nyquist rate, so the Nyquist rate is 2 times the highest frequency of the signal. So if we are sampling at a higher rate than Nyquist, which is called oversampling, so that creates correlation between samples. It has its advantages and it has its disadvantages. Obviously, oversampling means that we are taking samples closer to each other. So that means when it comes to reconstruct the original signal from the samples, we will have a better reconstructed signal. So that's the good portion.
The bad part is that obviously because we are oversampling, so we will have more samples. So we need more storage space, more time to transmit those samples, etc., etc. Anyways, so the difference between samples has a small variance, which is smaller than the variance of the signal itself. So that is what we ensure when we do oversampling. So because we are sampling quicker, so the samples don't have much difference between them. So that is why the variance between the samples is smaller than the variance of the signal itself. This is a technique which was used in image coding, okay, as you can see in the sample image also. And the basic concept in imaging is that a pixel's value can be determined from its neighbor's value. So if you see the highlighted portion in the picture, you see all of those pictures, they have almost the same shade. So the neighboring pixel is expected to have the same or a similar gray level as compared to the current pixel. So that is the concept. When they are close together, so they are expected to be closer to each other in values as well. So when a signal is sampled at a rate higher than Nyquist, the resulting sampled signal is found to exhibit high correlation between adjacent samples. You can even test it. So you can take a signal, you can take its samples at different rates, and then you can perform a correlation between them, and you will find out that the correlation between closely located samples is higher than those between further sampled values. So what does this high correlation imply? It implies that the signal does not change rapidly from one sample to next. हम एक sample जितना दूसरे के करीब ले रहे होंगे तो उतना ही उनमें change कम आएगा, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा correlation होगी. So the difference between adjacent samples as a variance, वही बात repeat हो रही है, that is smaller than the variance of the signal itself. So when this starts happening, कि जब उनमें variation इतनी कम हो, then that is the advantage we use basically. So when these highly correlated samples are PCM coded, the resulting encoded signal has redundant information, and removing this redundant information it can increase efficiency. ठीक है, तो एक तो ये concept है. For example, आप samples ले रहे हैं करीब, ठीक है, तो let's say आपने एक sample लिया, उसकी value है bits में बता रहा हूँ मैं, उसकी value है 1010, ठीक है. फिर आपने उसके करीब का एक सैम्पल लिया, मतलब ओवर सैम्पलिंग कर रहे हैं, सैम्पलिंग रेट ज़्यादा है, तो आपने उसके थोड़ी देर बाद ही एक सैम्पल ले लिया, तो इस सैम्पल और अगले सैम्पल में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगी, कम होगी. लेट्स से दिस इज़ द नेक्स्ट सैम्पल. ओके, सो एज यू कैन सी दैट देयर इज़ अ स्मॉल वेरिएशन बिटवीन ओवर सैम्पल्ड वैल्यूज़. तो एंड में फॉर एग्जांपल आखिरी बिट में एक वेरिएशन है, द फर्स्ट 3 बिट्स आर कांस्टेंट. तो ये जो दोनों में सेम बिट्स हैं, द सेम इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ कॉल्ड रिडंडेंसी. ये रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों में सेम है, चेंज सिर्फ आखिर में जाके आ रहा है. तो अगर आप नंबर ऑफ़ बिट्स 8 अज्यूम करें लेट्स से पर सैम्पल, या नंबर ऑफ़ बिट्स इससे भी ज़्यादा हों पर सैम्पल, तो उसमें आखिरी कई बिट्स में जाके कोई डिफरेंस आ रहा होगा. शुरू वाली बिट्स दोनों सेम होगी, अगर हमने ओवर सैम्पलिंग की हुई है तो शुरू वाली बिट्स सेम होगी. तो ये रिडंडेंसी है. तो इफ़ वी रिमूव दैट रिडंडेंसी वी कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी. तो अगर हमें पता है कि यार इस रेंज की वैल्यूज़ में शुरू की बिट्स चेंज नहीं हो रही, हम सिर्फ आखिरी बिट को लेके चल सकते हैं आगे, और इसका हम रिकॉर्ड रख सकते हैं कि यार इतने सारे सैम्पल्स की शुरू की बिट्स ये थी, ठीक है, और यहाँ आखिरी एक बिट में आखिरी 2 बिट्स में चेंजेस आ रहे थे. सो दैट इज़ हाउ वी कैन रिमूव द रिडंडेंसी एंड वी कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी. तो फिर सब बिट्स को ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ जिन बिट्स में चेंज आ रहा है सिर्फ उन्हें ट्रांसमिट करने की ज़रूरत पड़े, तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई. और इसके अलावा वी कैन यूज़ प्रिडिक्शन. एक स्टेप हम इससे आगे जा सकते हैं, ठीक है ना. वी कैन यूज़ प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन में क्या है, अच्छा अभी तक जो आपको मैंने बैकग्राउंड दिया है प्रिडिक्शन पे आने से पहले, ठीक है, वो ये है कि जी अगर हम ओवर सैम्पलिंग कर रहे हैं जो कि हम DPCM में करते हैं, तो हमारा जो एनकोडेड सिग्नल है इट कंटेन्स रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन विच कैन बी यूज्ड पॉजिटिवली. So if we remove the redundancy before encoding, we get a more efficient signal to be transmitted.
ठीक है। तो अब कैसे होता है इसमें DPCM में एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है कि अगर सैम्पल्स आपस में क्लोज हों तो उनकी कोरिलेशन ज़्यादा होगी, सैम्पल्स आपस में क्लोज हो तो उनमें आपस में डिफरेंस कम होगा, सैम्पल्स आपस में क्लोज हों तो उनमें रिडंडेंसी हो सकती है। तो अगर हम उस रिडंडेंसी को किसी तरह रिमूव कर लें तो वी कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, अब DPCM पे आते हैं, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। वी नो द सिग्नल अप टू अ सर्टेन टाइम, जितने मेरे पास अभी तक सैम्पल्स आए हैं, ठीक है ना, उसके बारे में मुझे पता है उनकी वैल्यूज़ का, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है जो भी, वी कैन यूज़ प्रेडिक्शन टू एस्टिमेट द नेक्स्ट वैल्यू। अभी आई नहीं है, अगला सैम्पल नहीं आया, लेकिन मैं उसकी वैल्यू प्रिडिक्ट कर लेता हूँ या एस्टिमेट कर लेता हूँ बाय यूजिंग द प्रीवियस वैल्यूज़। तो अगर हम सिग्नल को फॉर एग्जांपल सैम्पल कर रहे हैं एट अ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ fs, ठीक है, और हमारे पास एक सैम्पलिंग सीक्वेंस आ रहा है जहाँ पे हर सैम्पल जो है वो ts सेकेंड्स दूसरे एक अगले सैम्पल से दूर है, और फिर हम क्या करते हैं कि जी हम प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है, अगले सैम्पल की। और आगे जो जिसको हमने सैम्पलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्वांटाइज़र होता है, तो हम सैम्पल वैल्यू नहीं दे रहे क्वांटाइज़र को, ठीक है ना। जो सिग्नल आ रहा है अभी तक हमने ये सीखा है PCM में कि हम सिग्नल के सैम्पल्स लेते हैं और उन सैम्पल्स को क्वांटाइज़ कर देते हैं। DPCM में ये नहीं होगा, हम सैम्पल्स को क्वांटाइज़ नहीं कर रहे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्वांटाइज़र को हम क्या इनपुट दे रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द अनक्वांटाइज्ड इनपुट सिग्नल एंड इट्स प्रेडिक्शन। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हमें सिग्नल की वैल्यूज़ पता है पिछले सैम्पल्स तक, उनकी बेसिस पे हमने अगले सैम्पल की वैल्यू प्रिडिक्ट की, ठीक है, और फिर अगला सैम्पल ले लिया, अगला सैम्पल ले लिया और उसकी प्रिडिक्शन हमने की हुई थी। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो निकाला, डिफरेंस, और वो डिफरेंस जो है वो क्वांटाइज़र को दिया कि इसे क्वांटाइज करो। तो अब हम एक्चुअल सैम्पल्स को छोड़ के जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द प्रिडिक्शन एंड द ओरिजिनल वैल्यू, उसको क्वांटाइज़र में भेज रहे हैं, ठीक है। अब जितनी प्रिडिक्शन अच्छी होगी उतना ये डिफरेंस कम होगा, और डिफरेंस इज लेट से कि जी डिफरेंस की वैल्यूज़ बहुत कम होती हैं, ठीक है, एक्चुअल सैम्पल वैल्यूज़ से डिफरेंस की वैल्यूज़ बहुत कम होती है। लेट से कि सैम्पल वैल्यूज़ अगर 4 बिट्स में जा रहा है, जैसा आपको मैंने पिछली स्लाइड पे बताया, ठीक है ना, सैम्पल वैल्यूज़ 4 बिट्स में वेरी कर रही हैं, तो डिफरेंस जो है उनका वो 1 बिट में वेरी कर रहा होगा या 2 बिट्स में वेरी कर रहा होगा। तो अगर हम डिफरेंस को क्वांटाइज कर रहे हैं तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होगी, ठीक है। इस चीज़ को ग्राफिकली आगे सिस्टम इस तरह से इक्वेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट किया है कि हम क्या करते हैं कि एक हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, प्रिडिक्शन जिसे हम m कैप ऑफ n कह रहे हैं, और एक हमारी एक्चुअल वैल्यू है अगले सैम्पल की जिसे m ऑफ n कह रहे हैं। इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाल लिया, विच इज़ डिनोटेड बाय e, एरर कह लें आप इसे। द डिफरेंस e इज़ द प्रिडिक्शन एरर, बिकॉज व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स, ये उन दोनों का डिफरेंस है। अगर प्रिडिक्शन बहुत अच्छी होगी तो बिल्कुल वही आंसर आएगा जो कि एक्चुअल की सैम्पल वैल्यू है सैम्पल की, ठीक है, वरना करीब करीब आएगा, तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। ये जो e की वैल्यू है ये बहुत छोटी होगी। और लेट्स इमेजिन कि आप इससे क्वांटाइज कर रहे हैं, तो इसे क्वांटाइज करने में आपको छोटी छोटी वैल्यूज़ आएंगी, एम्पलीट्यूड लेवल्स थोड़े थोड़े आएंगे, तो आपको शायद कम क्वांटाइजेशन लेवल्स की ज़रूरत पड़े, यानी कि कम नंबर ऑफ बिट्स की ज़रूरत पड़े। तो DPCM में हम क्या करते हैं, वी हैव टू प्रिडिक्ट द करंट सैम्पल वैल्यू बेस्ड अपॉन प्रीवियस सैम्पल्स और सैम्पल, एंड वी हैव टू एनकोड द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सैम्पल एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो हमने डिफरेंस को जो है उसको एनकोड करना है, डिफरेंस को क्वांटाइज करना है। तो चूंकि हम इसमें प्रिडिक्शन इन्वॉल्व कर रहे हैं हम DPCM में, इट्स नेसेसरी टू प्रिडिक्ट सैम्पल वैल्यू। DPCM एक ऐसी कैटेगरी में फॉल करती हैं जिसे हम प्रिडिक्टिव कोडिंग कहते हैं। सो DPCM इज़ अ प्रिडिक्टिव कोड, ठीक है ना, प्रिडिक्टिव कोडिंग टेक्निक्स में आता है, इसलिए इसमें प्रिडिक्शन इन्वॉल्व है। तो वंस अगेन समराइज कर रहा हूँ, दैट इज़ द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे बजाय इसके कि एक्चुअल सैम्पल जो हैं वो क्वांटाइज हो, सैम्पल की वैल्यू और उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू, उनका जो डिफरेंस है वो क्वांटाइज होता है और फिर वही एनकोड होता है, ठीक है। और वो प्रिडिक्शन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन या आइदर वन प्रीवियस सैम्पल या मल्टीपल सैम्पल्स, वो जो भी प्रिडिक्शन एल्गोरिदम यूज हो। सो द DPCM कोड वर्ड्स दे रिप्रेजेंट डिफरेंसेस बिटवीन सैम्पल्स, अनलाइक PCM वेयर कोड वर्ड्स रिप्रेजेंट अ सैम्पल वैल्यू, ठीक है। तो एक मेजर डिफरेंस आ गया। अब यहाँ से जो हमें एनकोडेड वैल्यूज़ मिल रही हैं, जो बिट कॉम्बिनेशन हमें मिल रही है DPCM के बाद, वो हर एक बिट कॉम्बिनेशन ये सैम्पल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो
तो यही बेसिक आइडिया ऑफ DPCM है, दैट वी आर कोडिंग अ डिफरेंस. It is based on the fact that most source signals show significant correlation between successive samples when coding uses redundancy in sample values which implies lower bit rate. जैसे मैंने आपको illustrate कर दिया पहले कि अगर पहले 4 बिट चाहिए थी तो अब जो है एनकोडिंग में 4 की जगह में भी 2 बिट चाहिए हो या 1 बिट चाहिए हो. ठीक है, तो फिगरेटिवली बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट है वो ये कि ये आपका सिग्नल है. ठीक है, अगर आप इसके सैम्पल्स ले रहे हैं, ठीक है, और आप ओवर सैम्पलिंग कर रहे हैं तो आप सैम्पल्स करीब करीब लेंगे. और फिर अगर आप सैम्पल्स का डिफरेंस निकालें, जैसे आपको नीचे वाले ग्राफ में नज़र आ रहा है डेल्टा, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एंड द प्रीवियस सैम्पल. तो अगर आप सैम्पलिंग करीब करीब कर रहे हैं तो डिफरेंस बहुत कम होगा, जैसे आपको नीचे वाले ग्राफ पे नज़र आ रहा है. अब इस डिफरेंस को आपने एनकोड करना है, तो डिफरेंस की आप वेरिएशन देख लें कितनी है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल सिग्नल की वेरिएशन. तो ओरिजिनल सिग्नल लेट्स से अकॉर्डिंग टू द अपर फिगर, अगर ओरिजिनल सिग्नल वेरी कर रहा है, द वैल्यूज़ आर बिटवीन 50 एंड 200, तो उसको उस लिहाज से आपने क्वांटाइज़र के लेवल्स असाइन करने होंगे. और अगर आप डिफरेंस को देखें तो डिफरेंस जो है प्रोबेबली ये 0 से +5 से -5 या +10 से -10 वेरी कर रहा होगा. तो आपको ऐसा क्वांटाइज़र चाहिए जो कि इन लेवल्स की क्वांटाइजेशन कर सके. तो बहुत बड़ा फ़र्क है. ठीक है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि DPCM या डिफरेंशियल PCM में यूज़ होता है. तो इसको अचीव कैसे करते हैं, जैसा आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि आप इनपुट सिग्नल का ओरिजिनल सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, और उस सैंपल की आप प्रिडिक्शन भी कर रहे हैं. ये प्रिडिक्शन जो है आप पिछले सैंपल की बेस पे कर रहे हैं. बहरहाल तो जो एक्चुअल सैंपल आया और जो आपने प्रिडिक्टेड वैल्यू की थी, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालते हैं, उसको हम ई से इंडिकेट करते हैं. ये डिफरेंस जो है ई, ये क्वांटाइज हो रहा है असल में. ठीक है, सो लेट से ये क्वांटाइज होके ई डैश बन गया और फिर ये आगे फर्दर यूज़ होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोसेस्ड फर्दर. अब अगर और ये जो प्रिडिक्शन एरर है बेसिकली ये बताता है नेक्स्ट सैंपल की प्रिडिक्शन को इम्प्रूव करता है. तो लेट्स से अगर हमने जो सैंपल प्रिडिक्ट की थी एस कैप वैल्यू, ठीक है, वो एस से ज़्यादा थी, वो अगर एस से ज़्यादा थी, एस कैप की वैल्यू एस से ज़्यादा थी तो ई नेगेटिव निकलेगा. ठीक है, फिर ये क्वांटाइज होगा. जब ई नेगेटिव निकलेगा, ठीक है, और ये हमारी पिछली प्रिडिक्शन थी, ये नेगेटिव वैल्यू इस प्रिडिक्शन की वैल्यू को, अगली प्रिडिक्शन की वैल्यू को कम कर देगी. हमने ओवर प्रिडिक्ट किया था ना, हमने जो वैल्यू प्रिडिक्ट की थी वो इससे ज़्यादा निकल आई थी, यानी कि हमने अपनी प्रिडिक्टेड वैल्यू कम करनी है. तो जब ई की वैल्यू नेगेटिव आती है, ई डैश की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो वो इस अगली प्रिडिक्शन की वैल्यू को कम कर देगी. और अगर एस कैप की वैल्यू एस से कम है तो फिर ई की वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी, फिर ई डैश की वैल्यू भी पॉजिटिव निकलेगी. तो ये पॉजिटिव वैल्यू जो है पिछली प्रिडिक्शन के साथ ऐड हो जाएगी, यानी कि हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू कम थी एक्चुअल से, तो हमारी प्रिडिक्शन को थोड़ा सा हाई कर दो तो नेक्स्ट प्रिडिक्शन की वैल्यू हाई हो जाएगी. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स एट द एनकोडर साइड. अब ऑब्वियसली चूँकि हम डिफरेंसेस को क्वांटाइज कर रहे हैं, डिफरेंसेस को एनकोड कर रहे हैं, तो हमने उससे एक्चुअल वैल्यू भी लेनी है फिर, तो रिसीवर साइड पे उससे रिकन्स्ट्रक्ट करना है. ठीक है, तो रिसीवर साइड पे अगर आप देखें स्ट्रक्चर, तो रिसीवर पे क्या हो रहा है कि हमारे पास वो क्वांटाइज एरर हमें रिसीव हो रहा है. ठीक है, और रिसीवर पे भी एक प्रेडिक्टर लगा हुआ है जो कि एक वैल्यू प्रेडिक्ट करता है सैंपल. तो वो जब सैंपल की वैल्यू प्रेडिक्ट करता है, उसको इसके साथ मिला के वो एक्चुअल वैल्यू है जो कि रिसीवर जो है वो डिकोड करता है कि ये मेरी एक्चुअल वैल्यू होगी. So that is how reconstruction principle works. Okay. बहरहाल तो ये कॉन्सेप्ट है DPCM का, कोडर और एनकोडर उसके ऐसे काम करते हैं. और लीनियर प्रेडिक्शन एक टर्म यूज़ होती है, हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, तो लीनियर प्रेडिक्शन इज़ अज्यूम्ड इन DPCM. बेसिकली लीनियर प्रेडिक्शन क्या है कि जब मैंने चूँकि प्रेडिक्शन करनी है पिछले सैंपल वैल्यूज़ को लेके, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये पिछला सैंपल और जो सैंपल वैल्यू मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ये सारे स्ट्रेट लाइन पे हैं, लीनियर. ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन. तो यूजुअली लीनियर प्रेडिक्शन इज अज्यूम्ड इन DPCM. So that is a mathematical operation where future values of a discrete time signal are estimated as a linear function of previous samples. In DSP, linear prediction is often called, it's known as linear predictive coding, LPC.
ठीक है, तो ये एक और नाम भी है इसका, LPC, इट मीन्स द सेम थिंग, लीनियर प्रेडिक्शन। तो बेसिकली लेट से अगर मेरा एल्गोरिदम ऐसा है कि पिछले 2 सैम्पल्स की बेसिस पे अभी वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है, तो वो ये अज्यूम कर रहा है कि अभी जो मैं वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा हूँ और ये तो पिछले 2 सैम्पल की वैल्यूज़ थी, ये तीनों के तीनों जो हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे। तो वो एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम करके इस वैल्यू को प्रिडिक्ट कर देता है कि जी आपकी ये वैल्यू क्या बनेगी। तो ज़्यादातर DPCM में लीनियर प्रिडिक्शन अज्यूम की जाती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे चले गए हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए DPCM को, विच इज़ कॉल्ड डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन इज़ अ टेक्निक विच प्रोवाइड्स अ staircase अप्रोक्सीमेशन टू एन ओवर सैम्पल वर्जन ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो केस वही है, ओवर सैम्पलिंग हमने की हुई है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन जो है वो ज़रा सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो सैम्पलिंग इज़ एट अ हायर रेट दैन नाइक्वेस्ट, विच की वजह से कोरिलेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है DPCM वाला, ये DPCM की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर इट इज़ शोइंग यू द वे staircase अप्रोक्सीमेशन फॉलोज द वेरिएशंस इन इनपुट सिग्नल। ठीक है, एंड B shows you the corresponding binary sequence at delta modulator output। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो डॉटेड में नज़र आ रहा है आपको M of T, ये आपका मैसेज सिग्नल है। ठीक है, और ये जो आपको सॉलिड में नज़र आ रहा है जिसे हम staircase अप्रोक्सीमेशन कह रहे हैं, जो कि डेल्टा मॉड्यूलेशन में होती है, इट अप्लाइज अ staircase अप्रोक्सीमेशन ऑफ आवर ओरिजिनल सिग्नल। तो बेसिकली हाउ इट वर्क्स इज़ दैट हमारा जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ठीक है ना, प्रिडिक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है। मैंने आपको कहा ये DPCM की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो हमने एक वैल्यू प्रिडिक्ट की, ये वो प्रिडिक्टेड वैल्यू है इधर, ठीक है, और ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, सही है। और हम इसको प्रिडिक्शन को कंपेयर कर रहे हैं हम एक्चुअल वैल्यू से एट द फॉलिंग एज, ठीक है ना, एट द फॉलिंग एज, जहाँ पे तो फॉलिंग एज पे हम कंपेयर कर रहे हैं। ये इंटरवल कांस्टेंट है, टाइम इंटरवल जो है ये TS, दैट इज़ कांस्टेंट। फॉलिंग एज पे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो पहले अगर मैं यहाँ पे शुरू करूँ, ये फॉलिंग एज मेरा बन रहा है, तो यहाँ पे जब मैंने दोनों को कंपेयर किया तो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन द एक्चुअल वैल्यू। सो व्हेन माय प्रिडिक्टेड वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन द एक्चुअल वैल्यू, तो ये कहता है कि डेल्टा वोल्ट्स अपनी प्रिडिक्शन वैल्यू कम कर दो। ठीक है, तो एरर जो है, एरर बेसिकली वो क्वांटाइज हो गया है, बस वो फिक्स हो गया है डेल्टा। जब भी मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा निकलेगी, डेल्टा वोल्ट्स मेरी अगली प्रिडिक्शन नीचे हो जाएगी, अगली प्रिडिक्टेड वैल्यू डेल्टा वोल्ट्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ फॉलिंग एज पे, मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है एक्चुअल से ज़्यादा थी, तो क्या किया, इसको डेल्टा वोल्ट्स कम कर दिया। ओके, अब ये मेरी अगली प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी। अब ये अगली प्रिडिक्टेड वैल्यू मैंने प्रिडिक्ट कर दी, ये आपको यहाँ इस लेवल से शो हो रही है। वंस अगेन ये जो मेरा फॉलिंग एज है, यहाँ पे कंपैरिजन होगा बिटवीन द एक्चुअल एंड द प्रिडिक्शन। वंस अगेन माय प्रिडिक्शन इज़ हायर देन द एक्चुअल, तो डेल्टा वोल्ट्स कम कर, डेल्टा वोल्ट्स कम हो। अब ये लेवल हो गया मेरी प्रिडिक्शन का। अब यहाँ पे जब जो उसका फॉलिंग एज है, यानी कि जहाँ पे वो वैल्यूज़ की ख़त्म हो रही है, अब अगले की बारी आनी है, तो यहाँ पे जब मैंने कंपैरिजन किया इस वक्त, तो यहाँ पे मेरी प्रिडिक्शन इज़ एक्चुअली लोअर देन द एक्चुअल। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंक्रीज बाय डेल्टा। ठीक है, तो मेरी अगली प्रिडिक्टेड वैल्यू जो होगी दैट विल बी डेल्टा वोल्ट्स मोर देन दिस प्रिडिक्शन, तो ये इंक्रीज बाय डेल्टा। फिर यहाँ फॉलोइंग एज पे कंपैरिजन होगा, माय प्रिडिक्शन इज़ ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू, तो फिर डेल्टा वोल्ट्स कम कर दो। एंड दैट इज़ हाउ दिस होल थिंग इज़ approximation around my actual signal, and that appears in the form of a staircase। इसी वजह से इसको staircase approximation कहते हैं। और यहाँ पे जो इससे आगे एनकोडिंग हो रही है इसकी आउटपुट पे, वो यहाँ नीचे शो हो रहा है। तो बेसिकली एनकोडिंग का सिंपल प्रिंसिपल है, व्हेन माय प्रिडिक्शन इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल इट्स 0, व्हेन माय प्रिडिक्शन इज़ लेस देन एक्चुअल देन इट्स 1। तो आप देख लें, इसको फॉलो कर लें, जहाँ जहाँ मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू कम है फॉलिंग एज पे, वहाँ पे वी हैव अ 1, जहाँ जहाँ ज़्यादा है वी हैव अ 0।
ठीक है. सो दैट इज़ हाउ वी आर एबल टू सी द corresponding binary sequence at delta modulator output. ठीक है. तो ये वो पॉइंट्स है मेन. मैसेज सिग्नल इज ओवर सैम्पल, द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द अप्रोक्सीमेशन इज क्वांटाइज इन 2 लेवल्स, या प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा. बस ये सिंप्लीफाई हो गया और कुछ नहीं. मेरी प्रिडिक्शन ज़्यादा है तो माइनस डेल्टा, मेरी प्रिडिक्शन कम है तो प्लस डेल्टा, बस बात खत्म. तो दीज लेवल्स they correspond to positive or negative differences. If my approximation falls below the signal, it is increased by delta. If approximation falls above the signal, it is decreased by delta. So provided that the signal does not change very rapidly, this approximation remains within plus minus delta. तो इसमें हम क्या अज्यूम करते हैं, एम ऑफ टी अगर हमारा इनपुट मैसेज सिग्नल है, एम क्यू ऑफ टी हमारी जो है स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन है. ठीक है. तो फिर जो है हमारा जो वो एरर सिग्नल, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, एंड दैट बेसिकली इज़ डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ एरर. तो एरर पॉजिटिव है तो डेल्टा पॉजिटिव होगा, एरर नेगेटिव है तो ई क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. और फिर हम जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन करते हैं हम पिछले के साथ इसको शामिल कर देते हैं, यानी कि या तो ये प्लस डेल्टा हो जाएगा पिछले के मुकाबले में, या माइनस डेल्टा हो जाएगा. तो वही चीज़ मैथमेटिकली यहाँ पे आपको शो हो रही है. ग्राफिकली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उधर. नाउ वी कम टू एडाप्टिव DPCM. ठीक है. अब ये उसकी भी एक एडवांस फॉर्म है. एडाप्टिव DPCM इज़ अ वेरिएंट ऑफ DPCM दैट वेरीज द साइज ऑफ द क्वांटाइजेशन स्टेप टू अलाउ फर्दर रिडक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ फॉर अ गिवन सिग्नल टू नॉइस रेशो. तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गई, स्टेप साइज में चेंज कर सकता हूँ. ठीक है. जैसे डेल्टा है ना, डेल्टा अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, हालात के मुताबिक डेल्टा चेंज हो सकता है. So it varies the mapping of number of bits to differences dynamically. फिर number of bits भी बदल जाएंगे. कभी डिफरेंस ज़्यादा है, if the change is rapid we will use large differences, if the change is slow we use small differences. तो डेल्टा जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है, और इस लास्ट से नंबर ऑफ बिट्स भी जो डेल्टा को रिप्रेजेंट करें कभी कम कभी ज़्यादा, तो एडाप्टिव हो गया, ज़रा ज़्यादा स्मार्ट हो गया. लेकिन ऑब्वियसली इट नीड्स अ मोर इंटेलिजेंट, मोर डायनामिक, मोर फ्लेक्सिबल हार्डवेयर कि जो कि इस वेरिंग स्टेप साइज को सपोर्ट कर सके. तो ये जितना कुछ अभी आपने पहले पढ़ा है DPCM, डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये फिर उसकी भी एडवांस फॉर्म है. ठीक है. तो ये इम्प्लीमेंटेड है. ADPCM एप्लीकेशन इन टेलीफोनी स्टैंडर्ड ऑडियो सिग्नल फॉर अ सिंगल फ़ोन कॉल इज़ एनकोडेड एज 8000 सैम्पल्स पर सेकेंड. अगर आपको नहीं पता अब तक, वैसे तो पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल सैम्पलिंग है 8000 सैम्पल्स पर सेकेंड, और हर सैम्पल 8 बिट्स का है. ठीक है. तो पर सेकंड जो है बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट 64 किलो बिट्स पर सेकंड ऑफ डिजिटल सिग्नल. तो इतनी नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड है 64,000. और फिर हम इसके ऊपर म्यू लॉ या ए लॉ लगाते हैं, वही जो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है उसके लिए. तो वेयर सर्किट कॉस्ट आर हाई एंड लॉस ऑफ वॉइस क्वालिटी इज एक्सेप्टेबल, इट समटाइम्स मेक सेंस टू कंप्रेस द वॉइस सिग्नल इवन फर्दर. ठीक है. तो हम यहाँ भी इस कंप्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं. तो ADPCM एल्गोरिदम क्या करेगा कि जो 8 बिट के आपके पास वैल्यूज़ आई हैं, म्यू लॉ या ए लॉ जिससे भी आई हैं, PCM सैम्पल्स, इनको 4 बिट ADPCM में कन्वर्ट कर देगा. तो अगर पहले एक वॉइस सिग्नल के लिए आपको जितनी स्पेस या बैंडविड्थ चाहिए थी, अब उसके आधा चाहिए, या उतनी स्पेस में उतनी बैंडविड्थ में 2 ऑडियो सिग्नल्स आप अकोमोडेट कर सकते हैं. सो इन दिस वे द कैपेसिटी ऑफ द लाइन इज़ डबल्ड. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट वही है, रिडंडेंट. पहली 4 बिट्स आप कह लें रिडंडेंट है. ठीक है. तो आखिरी 4 बिट्स उनको यूज़ करो. तो इस तरह से जो है वी आर एबल टू अचीव अ हायर एफिशिएंसी. सो दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ ADPCM. एडवांटेजेस ऑब्वियसली आपको अब तक अंदाज़ा हो गया होगा. वी रिक्वायर लेसर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू PCM. We have a lesser quantization error due to prediction filters, and the number of bits per sample they are reduced. So advantages ही advantages हैं. Disadvantage आपको मैंने बता दिया था कि हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ज़रा. ठीक है. कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर में भी बढ़ जाएगी इस वजह से. लेकिन बहरहाल एडवांटेजेस ऐसे हैं कि यू आर रेडी टू बेयर दैट कॉस्ट, इसलिए कोई वन टाइम कॉस्ट है, आगे कितनी बचत है. माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहा है ADPCM, और उन्होंने इस पर काफ़ी अच्छा एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है. आई हैव शेयर्ड द लिंक, यू कैन गो थ्रू इट एंड सी के हाउ ADPCM वर्क्स. अगर फर्दर इनसाइट करने का शौक है कि माइक्रोसॉफ्ट ADPCM को कैसे यूज़ कर रहा है, तो गो थ्रू दिस लिंक. इट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वेरी यूजफुल.